हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन फाइन। आई एम आल्सो फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बाय इल्टन मायो. So till now we have studied classical approach to the organizational analysis, in which we have seen the different thinker like F.W. Taylor, Henry Fayol, Ulrich, Gullich, and Weber, in which we have seen that all the thinkers emphasize the formal structure of the organization and focuses on the efficiency of organizations and neglect the human aspect in the organization. Only they focus on the efficiency of the organization, how the efficiency increase and formal structure of the organizations like hierarchy, authority, unity of command, like this. But no one emphasize the human aspect in the organizations. So what is the human aspect? Means that social interactions, psychological aspect, physiological aspect of the workers in the organizations. No one came about the problem of the workers in the organizations. Only in classical approach, everyone emphasize only the efficiency of the organizations. So to figure out the problem of workers in the organizations, Ilton Mayo research experimented in a company about the sociological and psychological factors of the employee and figure out some principles observation, and they came out these observations and gave name the this approach to the human relation approach. So in human relation approach, thinkers focuses on the sociological, psychological dimension of the organizations. But we have seen that in classical approach of organizations, thinkers focuses on formal structures, hierarchy, efficiency of the organization. This is the difference between classical approach of organization and human relation approach of the organizations. So focus on classical approach of organization is efficiency, and in which thinkers regarded employee as a economic man, means that employee get motivated by the economic reward incentive. But in a human relation approach, thinkers regarded employee as a social man rather than economic man, in which a worker motivated by social relationship, personal relationship, informal organization making. So in which employee regarded as a social man. सो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां से हमारा फिर क्या आया, क्लासिकल थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया. फिर उसके बाद कुछ उसमें जो कमियां रह गई, जो उसमें कुछ एक्सपेक्ट नेग्लेक्ट हो चुके थे, उनको फिगर आउट किए कुछ थिंकर, तो कुछ नए अप्रोचेस लाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो क्या हुआ, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ऐसे ऐसे क्रोनोलॉजिकली हमारा अप्रोचेस बढ़ते गए. उसके बाद हमारा ह्यूमन रिलेशन के बाद जो इसमें कमियां आएगी उसको दूर करते हुए कुछ अप्रोचेस लाए गए, तो उसको क्या बोला जाएगा, बिहेवियरल अप्रोच, देन सिस्टम अप्रोच. ऐसे लाइक वाइज बढ़ता गया है. तो हम एक एक करके पढ़ेंगे. हमारा अभी एक क्लास हो गया है. एक क्लास मतलब यहाँ पे मतलब थिंकर के जो है उनको क्लास बटी गई है. जैसे क्लासिकल थॉट ऑफ थिंकर्स हो गया, ह्यूमन रिलेशन के थिंकर्स हो गए, ऐसे लाइक वाइज. तो हम क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल पढ़ लिए, अब ह्यूमन रिलेशन थॉट ऑफ स्कूल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले एंड प्रोमिनेंट थिंकर है वो है इल्टन मायो. सो बिफोर स्टार्टिंग दियर अप्रोचेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस, have some ideas about their biography, their work, their schooling, their contribution, their publications, so that we can analyze their perspective to the organization, to the workers, each and everything in details. So उससे पहले हम थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, इनके क्या पर्सपेक्टिव रहे, क्या थॉट्स रहे, इनके क्या कैरियर इन्हेंसमेंट रहे, और एक अपने करियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के करियर में कैसे आगे बढ़े. सो एक एक करके देखते हैं.
So let's start one by one. Hilton Mayo was born on 26 December 1880 in Adelaide, Australia. Born on 26 December 1880 in Adelaide, Australia. एंड देखिए इनका तो नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो क्या है, इन ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए पहले उसका बायोडाटा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा आइडिया रहेगा वो कहाँ से थे, उनकी स्कूलिंग कैसे हुई, उनके पर्सपेक्टिव मतलब कैसे कैसे चेंज हुए। शुरू में सब लोगों ने पढ़ाई किसी और फील्ड में किया, बट उनका पर्सपेक्टिव सोसाइटी को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके कैसे चेंज हुआ, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इससे हमें क्या होगा, आइडिया लगेगा उनका थॉट पकड़ने के लिए। सो एजुकेशन देखिए, इनका पहले तो इनका जन्म कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और इनका जो प्राइमरी एजुकेशन पहले था मेडिकल फील्ड में किए थे। इन्होंने मेडिकल फील्ड में किए, उसके बाद देखिए इनका स्ट्रीम चेंज होते गया, और उसने फिर सोशियोलॉजिस्ट बने, साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट बने। सो ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ, देखिए एडिलेडे में उनका जो क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, तो वहाँ पे एडिलेडे यूनिवर्सिटी था, पहला उनका स्कूलिंग वहाँ पे हुआ। सो देखिए जो एडिलेडे यूनिवर्सिटी में इनका क्या था, मेडिकल में पढ़ाई किए थे, मेडिकल साइंस में। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी को मतलब कि ड्रॉप कर दिया और यूके चले गए। यूके चले गए, वहाँ भी इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। फिर भी इनको मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा ज़्यादा इस स्ट्रीम में, फिर वहाँ भी इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। एंड उसके बाद देखिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई की, वहाँ उनका मतलब स्ट्रीम में मन नहीं लगा, तो वो चले गए यूके में भी मेडिकल की पढ़ाई की, वहाँ भी उनको अच्छा नहीं लगा, तो साउथ अफ्रीका चले गए। अफ्रीका 3 साल रहे, फिर वहाँ से भी ये चले आए, वहाँ भी नहीं मतलब स्ट्रीम में मन लगा, क्योंकि इनके मतलब देख सकते हो आप, मेडिकल साइंस में इनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। बहुत से मतलब अलग अलग कंट्रीज में गए, मतलब यूनिवर्सिटीज में गए, पढ़ाई की है मेडिकल की, बट नहीं रहे। उसके बाद इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया, एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया है इन्होंने। देखिए मैं पॉइंट वाइज मतलब लिख दे रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि जर्नलिस्ट अफ्रीका क्या कहाँ गए, इस आइडिया लग जाएगा। तो एज ए जर्नलिस्ट भी काम किए इन्होंने, और ये फिर उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका से भी वापस आए, जर्नलिस्ट काम किए, फिर उसके बाद इनका स्ट्रीम चेंज हुआ, उन्होंने साइकोपैथोलॉजी में स्टडी की, साइकोपैथोलॉजी पैथोलॉजी में स्टडी की, और यही इनका मतलब कि यहीं से करियर का स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल रिसर्च के में। यहीं से इनका क्या होता है, करियर शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि देखिए मेडिकल स्टूडेंट से इनका साइकोलॉजिस्ट स्कूल में आ गया, मतलब स्ट्रीम में आ गया, और यहीं से इनका करियर का स्टार्ट होता है। और इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम किया, इनका सारा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल रिसर्च में रहा है। और इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी किसके ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर नहीं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे रहा, किसके, वर्कर के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर का कैसा बिहेव रहा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और वर्कर के सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन में कैसे रिलेशन रहा है, मतलब कि सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो कैसे एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, इसके बीच में इनका सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, यही इनका सेंट्रल थीम भी है। तो देखिए सारा पढ़ाई करने के बाद, मेडिकल वगैरह करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर स्ट्रीम इनका साइकोपैथोलॉजी में आया, और यहीं से उनका करियर स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिसर्च में।
यही से इनका मेन फोकस देखिए रहा इंडस्ट्रियल रिसर्च में। फिर देखिए क्या हुआ, फिर अब देखिए अब इनका स्ट्रीम चेंज हुआ तो उन्होंने फिर क्या किया, एडिलेड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी एंड फिलोसफी की डिग्री ली। एंड ग्रेजुएट हुए, क्या हुए, ग्रेजुएट हुए ऑनर्स से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेडिकल की पढ़ाई करते करते फिर इन्होंने साइकोपैथोलॉजी में किया, इंडस्ट्रियल रिसर्चर बने, फिर उन्होंने अपने मतलब एडेलेड यूनिवर्सिटी आए, वहां से उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी में क्या किया, ग्रेजुएट ऑनर्स हुए। एंड इन 1911 ही ज्वाइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 1911 he joined he joined एज ए लेक्चरर। देखिए अब इसके बाद जब अब ग्रेजुएट हुए उसके बाद उन्होंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, ज्वाइन एज ए लेक्चरर, एज ए लेक्चरर। अब किस में लेक्चरर ज्वाइन किया, देखिए अब फिलोसफी साइकोलॉजी पढ़े होंगे, पढ़े हैं तो उससे किसी फील्ड में होंगे, एज ए लेक्चरर इन मेंटल एंड मोरल, मेंटल एंड मोरल फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। देखिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स किया किसमें, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी में। आफ्टर दैट ही ज्वाइन एज अ लेक्चरर इन मेंटल एंड मोरल फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इल्टन मायो इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखिए, ये तो रही अब पढ़ाई को लेके, उनका उनका खुद का कैरियर को लेके, बट अब सोशल वर्क इनका कैसा रहा। देखिए मायो सक्सेसफुली मायो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड मायो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट to the soldiers who suffered from shell shock during the First World War। देखिए इनका जो पहला कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी को लेके, जो उनका क्या था, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज किए थे, बेसिकली पढ़ाई किए थे किसमें, साइकोपैथोलॉजी फिलोसफी साइकोलॉजी में पढ़ाई किए थे। तो इनका क्या था, ह्यूमन माइंड से इनका क्या था, खेलने की एक्सपीरियंस थी। तो इन्होंने क्या किया था, जो अपना पहला ऑर्गेनाइज्ड वर्क दिखाया था अपना सोसाइटी के लिए, वो क्या किया था, जो हमारे वर्ल्ड वार के टाइम जो प्रिजनर थे, मतलब जो सोल्जर्स थे सेल वगैरह में चले गए, मतलब जेल वगैरह में थे, वहां पे उनको जो शॉक लगा था, उनको मतलब जो मेंटल स्ट्रेस हुआ था, उसको मतलब ठीक करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटमेंट दिया था, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया था सोल्जर्स को। तो मतलब इतना बड़ा काम समझ सकते हो कर किए थे इन्होंने। फिर इसी के रिगार्ड में इनको क्या बनाया गया, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट इन 1919 एट द यूनिवर्सिटी। देखिए इसी के रिकॉर्ड में इनको क्या बनाया गया था, चेयरमैन बना दिया गया, किसका, फिलोसफी डिपार्टमेंट का। फिलोसफी डिपार्टमेंट। देखिए ये सब तो उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा, ऑस्ट्रेलिया में।
तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। बट आपको देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर शुरुआत करना है तो कहाँ से होगा, वो लास्टली यूएस से जाना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत यूएस से हुआ था, और सभी मतलब जो अलग अलग थिंकर्स थे अपने अलग अलग कंट्रीज में क्या किया, कंट्रीब्यूट किए, बट फाइनली पॉपुलर कहाँ से हुए, यूएसए से। तो फिर लास्टली क्या हुआ, लास्टली हिल्टन मायो भी क्या किए, माइग्रेट किए यूएसए में। इन 1922 he migrated to the US। बट देखिए, एक यूएस किस लिए आए थे, यूएस स्टडी करने के लिए आए थे, क्योंकि उनको फेलोशिप मिला था यूएस। इन देखिए 1922 में यूएस, और ऐसे नहीं चले गए, उन्होंने क्या, उनको फेलोशिप मिला था विथ, जैसे अपने यहाँ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे सब स्कॉलरशिप मिलता है ना, उस बेस पे गए थे वहां पढ़ाई करने के लिए, विथ रॉकफेलर फेलोशिप। एंड ज्वाइन द वार्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। एज अ रिसर्च एज ए रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किए थे। देखिए, अब तो एज ए रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 1926 ही ज्वाइंड एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड, देखिए फिर वो क्या हुआ, देखिए 1922 में तो उन्होंने एज एसोसिएट रिसर्च ज्वाइन किया था। फिर इन 1926 he joined as a associate professor। he joined as a associate professor and associate professor किसके हुए थे, इंडस्ट्रियल रिसर्च के। एंड डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च में, देखिए फिर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर डायरेक्टर भी बने, सेम इंडस्ट्रियल रिसर्च के। एंड इन 19, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 1929 एज ए प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर 1929 में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किए, किसको में, एज ए रिसर्च इंडस्ट्रियल एट द हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बहुत ही फेमस है बिजनेस स्कूल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। आप लोग अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इस स्कूल के बारे में जानते होंगे। तो उन्होंने इसी स्कूल में 1929 में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया था। इन 1929 एज ए प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एट द हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वेयर ही अंडरटुक पाथ ब्रेकिंग हाथोन एक्सपेरिमेंट। देखिए जो इनका बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, जो हाथन एक्सपेरिमेंट है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट एग्जाम में पूछता है हाथन एक्सपेरिमेंट के बारे में, और वही आज हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मेन उसी एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आपका सारा टॉपिक रिवॉल्व करता है। तो
तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, वो बिजनेस स्कूल ऑफ हार्वर्ड स्कूल में ही हुआ था, वेयर ही कंडक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, he concentrated on private industrial establishment and was supported by Rockefeller and Carnegie Foundation's grant. After retirement in 1947, he moved to Surrey, UK, where he died. In tribute to his contribution, इल्टन मायो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर इस सब तो इनका एक्सपेरिमेंट वगैरह रहा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा प्राइवेट इंडस्ट्री को स्टेबलाइजमेंट करने के लिए, इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, 1947 में यूके चले गए और वहां पे उनका क्या हुआ, डेथ हो गया। देखिए यहाँ से इनका मतलब कि जीवन काल समापन हो गया। बट इनका कंट्रीब्यूशन के रिगार्ड में, इन्होंने इनका जो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो इस रिगार्ड में यूके में क्या हुआ था, इनके नाम पे एक स्कूल खोला गया था, मैनेजमेंट स्कूल। यूके में तो डाइड हो गया था, बट इनका जो स्कूल खुला था एडिलेडे में हुआ था, इन ट्राइब्यूट टू हिज कंट्रीब्यूशन। इल्टन मायो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट was stabilized in Adelaide। देखिए अब तो ये इल्टन मायो के बारे में हमको लगता है ऑलमोस्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इनकी स्टोरी सुन के, इनका बायोग्राफी सुन के, और इनके सारे कंट्रीब्यूशन, इनकी कैसी स्टडीज हुए, सब कुछ आपको पता हो गया। और इनका मतलब स्ट्रीम, मतलब इनका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ, मेडिकल स्टूडेंट से कैसे साइकोलॉजी स्टूडेंट हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, तो सबको आपको सारा आइडिया लग गया होगा। और देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, मायो पब्लिश्ड मेनी बुक्स लाइक, देखिए जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है वो भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट इजी हो आपको। सो सी इज मेजर बुक इज, जो इनका पहला बुक था बहुत ही फेमस, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, पब्लिश्ड इन 1933। देखिए बुक वगैरह तो पक्का आप लोगों को याद रहे, क्योंकि बुक से ही एमसीक्यू बहुत आएगा, बुक से एमसीक्यू, उनके बुक के नाम, टाइटल, डेट, रिपब्लिश से सब बहुत ज़्यादा आता है, मैचिंग में भी आ जाएगा, कंक्लूजन वगैरह वाले में भी आ जाएगा। सो द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि 1933 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947। देखिए इनके बुक में खास क्या बात है, देखिए इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, तो अगर आपको सामने का ये टाइटल ना ध्यान हो तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन अगर कहीं भी आए तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इल्टन मायो का बुक है। और देखिए बुक में क्या है, इनके इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में बेसिकली क्या क्या चीज़ है, उन्होंने एस्पेक्ट बताया, ह्यूमन प्रॉब्लम के एस्पेक्ट को बताया, सोशल प्रॉब्लम को एस्पेक्ट को बताया, एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम एस्पेक्ट को बताया। बेसिकली किसको लेके, कल्चर को लेके, कोई भी इंडस्ट्रियल कल्चर है उसमें, तो मतलब इनके बुक को मतलब आइडिया लगाना ईजी है। So we have seen the major books of Eilton Mayo. Now move to the topic, that is human relation approach by Eilton Mayo and his experiment, that is Hawthorne experiment. So let's cover one by one. So let's start. The human relation approach is one of the most important developments in administrative theory. It shifted the focus of administration from mechanical efficiency to human behavior, emotions, and social relationship in organizations. I have explained you all the about. In classical approach, thinkers focus on efficiency, hierarchical structure,
of the organization, but in human relation approach, focus shifted from mechanistic view to the social view of the employee in the organizations. So what is the sociological and psychological dimension in organization? Sociological dimension is the social aspect is deal with social relationship, informal relationship, rules, norms, etc. While psychological aspect deal with human attitudes, sentiments, behaviors, etc. On these factors, human relation approach focuses in organization. The approach was mainly developed by Elton Mayo through the famous Hawthorne experiment conducted at वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. देखिए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है कि किस कंपनी में इल्टन मायो ने अपना एक्सपेरिमेंट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. तो बेसिकली इसके घुमा के दो टाइप से पूछ सकता है कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में इल्टन मायो ने कौन सी एक्सपेरिमेंट किया था, तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था. या पूछ लेगा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया गया था. सो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप अच्छे से मतलब मगअप कर लीजिएगा कि जो हॉथॉर्न का इल्टन मायो का हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में, बेसिकली शिकागो में है, वहाँ पे कंडक्ट किया गया था. और इसी मतलब कि जो रिसर्च कंडक्ट किया गया था यही बेसिकली क्या है, इल्टन मायो का एक्सपेरिमेंट है और जो आज का हमारा सेंट्रल थीम है टॉपिक का. And this approach challenged the classical theory of administration and emphasized that human beings are social beings whose productivity depends on psychological and social factors. जैसा कि क्लासिकल थिंकर ने अपने प्रिंसिपल में, अपने फिलॉसफी में बताया था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, एफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहिए, और जिसमें जो वर्कर्स हैं वो क्या है, इकोनॉमिक मैन है, वो बेसिकली मोटिवेटेड होते हैं वेज से, इंसेंटिव से, मतलब फिजिकल रिवार्ड से. बट जो हमारा फोकस शिफ्ट हुआ क्लासिकल अप्रोच से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, तो इसमें जो हमारे थिंकर्स हैं इल्टन मायो जी ने बताया कि जो हमारा ह्यूमन एम्प्लॉई है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स है, सोशल बींग्स है, और जो कंपनी का प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगा उनके साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक. सो फर्स्ट द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. Now see the background of human relation approach. Before the human relation movement, administrative theory was dominated by classical thinkers such as Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Lyndall Urwick, Luther Gulick, all these classical thinkers. So this thinker focuses mainly on efficiency and productivity of the organization and neglected the human aspect. And focuses on division of labor, formal organization, authority and hierarchy, standardization of work. However, classical theory treated worker like a machines and ignored. देखिए जो हमारा क्लासिकल थिंकर थे उनमें वर्कर को कैसे ट्रीट करते थे कि वर्कर क्या है, हमारे मशीन है. अब मैं ये किस लिए बोला गया, आप लोगों को ध्यान है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमारे जो FW टेलर जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, टाइम एंड मोशन स्टडी. टाइम एंड मोशन स्टडी, उसमें बेसिकली उन्होंने यही तो किया था, स्टॉप वॉच का यूज करके कितने टाइम में कोई काम करना है और बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन कैसे है, कोई काम करने के लिए हमारा बॉडी का मूवमेंट कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया और अपने मतलब जो इंडस्ट्री थे उसमें लागू किया. तो ये चीज क्या है, ये सब चीजें क्या है, हमारे रोबोट तो ही तो करता है, मतलब इंसान नहीं रोबोट करता है टाइम और कैसे क्या करना है. तो इसलिए बेसिकली क्या हुआ, क्लासिकल थिंकर ने वर्कर को क्या समझा, मशीन समझा, उनके मतलब इग्नोर कर दिया, ह्यूमन एक्सपेक्ट को इग्नोर कर दिया. लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट दे इग्नोर्ड. फर्स्ट ह्यूमन इमोशनल नीड, जो एम्प्लॉय के इमोशनल नीड को क्या किया, इग्नोर कर दिया. सोशल रिलेशनशिप, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सोशल ग्रुप होंगे, बट क्लासिकल थिंकर के अकॉर्डिंग नहीं है. उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं है, ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे काम होना चाहिए. तो क्या हुआ, हमारा क्लासिकल थिंकर सोशल रिलेशनशिप को इग्नोर कर दिए. एंड वर्कर सेटिस्फेक्शन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया कि वर्कर हमारा कैसे सेटिस्फाई होगा, ओनली ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी पे फोकस किया गया. और ऑर्गेनाइजेशनल में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया, ओनली फॉर्मल स्ट्रक्चर पे क्या किया, फोकस किया गया. सो दीज आर द फैक्टर विच आर इग्नोर्ड बाय द क्लासिकल थिंकर्स एंड ऑन विच फैक्टर आवर ह्यूमन रिलेशंस
thinkers focuses and give the principle. So due to these limitations, the human relation movement emerged in 1930. Important point, human relation approach emerged in 1930s. So इल्टन मायो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. देखिए अब जो हमारा ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के को फादर इल्टन मायो को रिगार्ड किया गया बिकॉज ऑफ देयर डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन. So Ilton Mayo, born in 1818, died in 1949, was an Australian-born psychologist who worked at the Harvard Business School. He believed that human problems of industry cannot be solved by technical or economic methods alone. Mayo argued that productivity depends on human attitudes, moral and social relationship in the workplace. देखिए जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने क्या किया था, टेक्निकल जो प्रिंसिपल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल थे, इस सब पे क्या किया था, फोकस किया था. बट हमारे जो मायो जी बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी ओनली टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल पर डिपेंड नहीं करेगा. उसके साथ साथ उन्होंने क्या दिया, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर बताए, जो कि हमारा ये देखिए साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर क्या है. मायो आर्ग्यूड दैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एटीट्यूड्स, मोरल, ये सब क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एंड सोशल रिलेशनशिप पे क्या है, हमारा सोशियोलॉजिकल डायमेंशन है. तो इस सब को भी इंक्लूड करके हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा, ना कि ओनली टेक्निकल एक्टिविटी से. सो दैट इस सब को नजर में रखते हुए हमारे इल्टन मायो जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. और ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट करने से पहले इनका एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि फर्स्ट इंक्वायरी रिसर्च उसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के जस्ट अर्ली स्टेज में उसको बोल सकते हो अर्ली स्टेज का क्या एक्सपेरिमेंट था. तो पहले हम अर्ली स्टेज का जो एक्सपेरिमेंट है जो कि फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट जिसका नाम दिया गया उसको पढ़ते हैं, देन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे. सो अब हम अर्ली स्टेज के जो उनके एक्सपेरिमेंट थे पहले उसको पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्ली एक्सपेरिमेंट जिसको फर्स्ट इंक्वायरी भी बोलते हैं. जो कि 1923 में हुआ. अब इसके क्या बेसिक डायमेंशन है, इसके क्या किस चीजों पे फोकस रहे, इस सबको हम देखते हैं अच्छे से. सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट इंक्वायरी जो 1923 में कंडक्ट किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट जिसको अर्ली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है कि एक किस कंपनी में किया गया. तो जो कंपनी का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है किस कंपनी में किया गया, कंपनी कहाँ पे है, ईयर वगैरह. तो जो कंपनी है वो किसकी कंपनी थी, टेक्सटाइल मिल की कंपनी थी. टेक्सटाइल मिल जो कि फिलाडेल्फिया में है. देखिए जो उनका अर्ली एक्सपेरिमेंट था वो था टेक्सटाइल मिल कंपनी नियर फिलाडेल्फिया. और इसमें भी खास पॉइंट कि उस मिल के कंपनी में सारे डिपार्टमेंट में इनका एक्सपेरिमेंट नहीं था, ओनली किससे था, स्पिनिंग डिपार्टमेंट. स्पिनिंग डिपार्टमेंट मीन्स चरखा वाला, जिसमें मतलब कि जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं, धागे वगैरह जिसमें बनाए जाते हैं, घूम घूम के बनते हैं ना, उसको आप लोग देखे होंगे. तो बेसिकली स्पिनिंग डिपार्टमेंट में था. सो देखिए इस एक्सपेरिमेंट के पीछे स्टोरी क्या है पहले उसको बताते हैं. देखिए जो टेक्सटाइल मिल की कंपनी थी फिलाडेल्फिया में, वो बहुत ही अच्छी मतलब वेल प्लान्ड. पहले तो देखिए जो हमारी कंपनी है टेक्सटाइल मिल कंपनी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे. उसमें से जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो था स्पिनिंग डिपार्टमेंट के लिए ओनली.
तो देखिए जो एक कंपनी की क्या थी, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, रूल, रेगुलेशन, ग्रोथ, ईच एंड एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था इस कंपनी का, ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा था। बट प्रॉब्लम किस में था, स्पिनिंग डिपार्टमेंट पे था। और स्पिनिंग डिपार्टमेंट पे क्या प्रॉब्लम था, स्पिनिंग डिपार्टमेंट प्रॉब्लम एक था कि वर्कर का एब्सेंटीज वगैरह बहुत ज्यादा आता था। टर्नओवर जो थे वर्कर के बेसिकली 250% ईयरली था। मीन्स दैट it means that about 100 industrial workers were required every year to keep about 40 workings, जो कि मतलब कि क्या था, टर्नओवर वर्कर्स का ओनली मिल डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूं 250% था। इट मींस 100 वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर 40 वर्किंग डे, फॉर 40 वर्किंग के लिए। और सभी जो डिपार्टमेंट था उसकी ऑलमोस्ट मतलब 5 to 6% था, 5 to 6%, मतलब ऑलमोस्ट गुड था। बट प्रॉब्लम था स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे मिल के और जो मैनेजमेंट वगैरह थे बहुत ही मतलब परेशान थे कि इस चीज को लेके। सो इसी चीज को मतलब कि नजर में रखते हुए इंटेंशनली क्या किया, इल्टन मायो जी ने उस कंपनी में क्या किया, रिसर्च किया। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे उन्होंने रिसर्च किया, फोकस पॉइंट क्या था उनका रिसर्च का, फोकस पॉइंट उनका क्या था रिसर्च का, फटीग, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, प्रोडक्शन लेवल, रेस्ट पीरियड, वर्किंग कंडीशन, एक्सेट्रा। देखिए जो उनका अब स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जो रिसर्च का फोकस रहा है वो बेसिकली क्या था, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन ऑफ द workers in the environment of spinning department, basically on the element of fatigue, accidents, production level, rest periods and working condition of the department। ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था जब हम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में थे उस समय, जो कि हुआ था हमारा 1923 में। सो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जितना ज्यादा कह सकते हो उतना ज्यादा। मायो टेकिंग कंसिडरेशन, देखिए जो मायो का कंसिडरेशन था इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, फिजियोलॉजिकल, इस सब फैक्टर पे थे, जिस फैक्टर पे उन्होंने ध्यान दिया मतलब फोकस किया। तो ये सब फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। देखिए जो ये अप्रोच रहा उनका, मतलब कि उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किसी चीज का बेसिक थीम होना चाहिए ना, बेसिक अप्रोच होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे आप क्या मतलब क्या जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इशूज आ रहा है, किस किस इशूज पे आप रिसर्च करोगे, मतलब वहां पे रिसर्च करोगे तो क्या क्या चीजें देखोगे। बेसिकली आपका कुछ तो मोटो होना चाहिए। तो जो उनका मोटो था बेसिकली ये सब पॉइंट थे, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। और इसी अप्रोच को क्या बोलता है, क्लिनिकल मेथड बोला गया है, जो कि मायो कॉल्ड दिस अप्रोच टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मायो कॉल्ड दिस Mayo called this approach
एज क्लिनिकल मेथड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है क्लिनिकल मेथड क्या है मायो का। सो राइट डाउन, एमसीक्यू है। सो क्लिनिकल मेथड हमने देख लिया उनका क्या एलिमेंट है उसमें, तो उस पर हमने फोकस कर लिया। अब देखते हैं कि जो हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम था। तो उन्होंने मतलब डिटेल्ड प्रॉब्लम देखा, तो उसमें देखा कि वर्करों के कुछ, उन्होंने देखा कि जो वर्कर थे मतलब स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जो वर्कर थे उनके उनके फुट प्रॉब्लम हुआ। उनके पाँव में कुछ मतलब प्रॉब्लम वगैरह होता था उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, जो मिली स्पिनिंग का जो भी इंस्ट्रूमेंट रहा होगा उसमें। इसके भी बहुत रीजन उन्होंने बताया, मतलब काफी ऑब्जर्वेशन किए तब जाके उन्होंने फाइंड आउट किया कि वर्कर के जो पैर में फुट में प्रॉब्लम हो रहा था उस डिपार्टमेंट में, बेसिकली किस रीजन, क्या था उसका रीजन, क्योंकि जो इक्विपमेंट था, मशीन था वो स्पिनिंग का, उसमें क्या करना था बिना मतलब स्लीपर वगैरह के ऐसे मतलब बेरे फुट वहां पे वॉकिंग करना होता था, जाना होता था, उसको ऑपरेट करना होता था, क्योंकि उस जो मशीन में क्या करना था, अप डाउन मूवमेंट था। और क्या था कि और ये भी एक फैक्टर था, वॉकिंग करना था, बेसिकली वॉकिंग करना था उस मशीन के आजू बाजू जो भी रहा होगा, क्योंकि जब मशीन चलती थी तो उसमें थ्रेड वगैरह टूट जाते थे, धागे वगैरह, तो उसको बांधना होता था, बाकी मशीन को ऑपरेट करना था, उसको ऑब्जर्व करना था। उसमें कुछ मतलब ऐसे उसके असेंबल थे जिनको अप डाउन मूवमेंट करना था, तो उसको जाना होता था। तो जो बेरे वॉकिंग करते थे फुट से, उनके फुट में प्रॉब्लम होता था। तो पहला तो ये पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया। और वो किस और ये किया कि उसमें जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट पे क्या थे, मतलब 2 से 3 वर्कर होते थे। और सारे मशीन को वही ऑपरेट करते थे। और एक ये प्रॉब्लम हो गया, बर्डन हो गया। और जो वर्कर होते थे वो डिफरेंट एज के थे। कोई 22 साल का था तो कोई 50 साल का था, ये देखा उन्होंने। तो इससे क्या हुआ कि एक सोशल ग्रुप जो होता है वो फॉर्म नहीं हो पाता था। जो कि सेम एज वाले रहेंगे तो काम करते करते थोड़ा सा इनफॉर्मल ग्रुप बनाएंगे, थोड़ा सा उनका जो बोर फील होगा तो उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे आपस में। तो ये सब चीजें नहीं कर पाते थे, तो ये भी उनके अंदर क्या था, एक रेस्ट्रिक्शन था, तो इससे भी वो बोर हो जाते थे। और क्या था कि वहाँ पे नॉइज़ वगैरह ज़्यादा थी। और काफ़ी डिस्टेंट पे थे, जो मतलब कि जो इक्विपमेंट थे हमारे मशीन से, वो काफ़ी डिस्टेंट पे थे। और उनको क्या करना था, मैनेज करना था, उसमें भी एम्प्लॉय क्या थे, कम थे। तो इससे उनको वॉकिंग करने में बहुत सारे प्रॉब्लम, एक सोशल ग्रुप फॉर्म करने में प्रॉब्लम हुआ, फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ। और जो मतलब एक रेस्ट टाइम होता था वो उनको नहीं मिल पाता था, जो सोशल रेस्ट फॉर्मेशन ग्रुप करे आफ्टर वर्किंग के बाद क्या करेंगे, जब एज ही डिफरेंट डिफरेंट है तो कैसे बात करेंगे, मतलब एक ये सब प्रॉब्लम उन्होंने ऑब्जर्व किया। और क्या था मेन प्रॉब्लम, और लोग इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो सारे एम्प्लॉय थे, वो जो प्रेसिडेंट थे उस कंपनी के, वो क्या थे उस समय यूएस आर्मी के, क्या थे, यूएस आर्मी में कर्नल कर्नल पोस्ट पे थे। और उनके अंडर सारे एम्प्लॉय काम किए थे, तो उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते थे। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो किससे पता चला, वहां पे एक नर्स थी, नर्स के द्वारा कॉन्फिडेंशियली रूप से पता चला उनको, मायो को। और मायो ने अपने खुद के भी फाइंडिंग्स निकाले। तो ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया। और इस ऑब्जर्व के बाद उनका क्या कंक्लूजन रहा, रिजल्ट क्या दिए। कंक्लूजन बेसिकली सजेशन क्या रहा कंपनी कंपनी के लिए। ये तो हमने देख लिया सारा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के फैक्ट्स क्या थे उसको। तो अब हम सॉल्यूशन दिए, उन्होंने क्या दिया कि रेस्ट पीरियड दो। कितना टाइम का रेस्ट पीरियड दिया उन्होंने, 10 मिनट्स का। और 10 मिनट्स का कब, 2 टाइम, मॉर्निंग में 2 टाइम्स इन मॉर्निंग प्लस 2 टाइम इन इवनिंग। सॉरी, आफ्टरनून में, इवनिंग में तो वैसे वर्किंग खत्म हो जाएगा, आफ्टरनून में। तो इस पहले जो सजेशन इन्होंने वहां पे क्या किया, अप्लाई किया, इसको अप्लाई करते ही ये बहुत ही मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस देखा उन्होंने। क्या था इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस देखा इस सजेशन को अप्लाई करते ही।
गुड परफॉर्मेंस हुआ। तो इससे क्या हुआ, देखिए इससे क्या हुआ, जो फटीग का प्रॉब्लम था वो क्या हुआ, वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गया और हमारा प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा हुआ। तो पहला सजेशन रेस्ट पीरियड का उन्होंने दिया। रेस्ट पीरियड का जो स्कीम अडॉप्ट करते ही कंपनी में क्या हुआ, जो फटीग वगैरह फिजिकल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। देखिए जो हमारे सजेशन था इसको तो अडॉप्ट कर लिया कंपनी ने, बट क्या हुआ था, और उसके बाद उन्होंने दिया था कि एक बोनस का दूसरा पॉइंट दिया, एक्स्ट्रा बोनस। अगर कोई भी काम एक लिमिट से ज्यादा अगर कोई वर्कर करेगा तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे भी वर्कर हैप्पी हुए, वर्कर क्या हुए, हैप्पी हुए, और कंपनी का जो प्रोडक्शन था अच्छा रहा। बट बढ़ते डिमांड को देख के, जो बढ़ते डिमांड थे कंपनी के, उसको देख के क्या हुआ कि ये जो रेस्ट पीरियड वगैरह था ये कम करना पड़ा, क्योंकि अब वहां पे डिमांड में ज्यादा चाहिए तो वर्किंग ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तो सुपरवाइजर लोग क्या किए, स्कीम को मतलब बंद कर दिए। फिर बंद करते ही क्या हुए, जो एम्प्लॉय क्या अनहैप्पी हुए, और क्या हुआ, हमारा एफिशिएंसी घटने लगा। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, कर्नल साहब, वो क्या हुए, बहुत परेशान हुए और फिर से मायो जी से रिसर्च के लिए बोले, और मायो जी ने फिर बोला ये आप हमारा सजेशन लागू कीजिए। तो फाइनली क्या हुआ, कर्नल जी ने 4 टाइम्स का रेस्ट पीरियड आप 10 मिनट्स का दिया कंपनी में, और उससे क्या हुआ, एम्प्लॉय हमारे हैप्पी हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रेबेल हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। रेबेल हाइपोथेसिस बेसिकली रिजेक्ट किया था इल्टन मायो ने। तो पहले हम रेबेल हाइपोथेसिस सो देखिए, रेबेल हाइपोथेसिस होता है कि ए क्लासिकल हाई इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट थ्योरी assuming that workers are an unorganized rebel or mob motivated solely by personal financial gain with no regard for social relationship। देखिए बेसिकली रेबल हाइपोथेसिस हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट थ्योरी है, जिसका ये एजम्पशन था कि जो वर्कर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, और वो सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है उनका, उनके खुद के फाइनेंशियल जो गेन होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे और काम करेंगे, ना कि सोशल ग्रुप के फॉर्म होने से वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो बेसिकली इसी एजम्पशन को इल्टन मायो जी ने अपने अर्ली स्टेज में क्या किया, रिजेक्ट किया, रिसर्च किया, और उसके जो हमारे एडवांटेजेस थे वो दिखाए, और इस थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर जो होंगे ओनली फाइनेंशियल इंसेंटिव से क्या होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि हमारे सोशल रिलेशनशिप से भी मोटिवेट होंगे, और उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। So the human relation approach pioneered by Eilton Mayo through the Hawthorne study rejected this view. Mayo argued that workers are influenced by non-economic incentives, social relationship, and group dynamics. So now come to the point, that is the Hawthorne experiment. So the Hawthorne experiment conducted during this period 1924 to 1932. Important point ये पूछता है MCQ में, MCQ है कि जो हाथोन एक्सपेरिमेंट का पीरियड क्या है, 1924 से 1932। सो द हाथोन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड एट द हाथोन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो, जो कि उस कंपनी में 25,000 वर्कर एम्प्लॉयड है। उस कंपनी में हमारे इल्टन मायो जी ने अपना क्या किया था, हाथोन एक्सपेरिमेंट किया था 1924 टू 1932 के ड्यूरेशन में। सो रिसर्चर इन्वॉल्व, और इस रिसर्चर में ओनली इल्टन मायो नहीं, जो कौन कौन से रिसर्चर इन्वॉल्व थे, बट जो मेन थे हमारे इल्टन मायो जी थे। सो इल्टन मायो, फ्रिट्ज रोल्सबर्ग, विलियम जे डिक्सन्स, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी। देखिए जो इस रिसर्च का जो मेन मोटो था हमारा क्या था, फिजिकल वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन है, बेसिकली वो बताता है हाथोन एक्सपेरिमेंट, फिजिकल वर्किंग कंडीशन वर्सेस वर्कर प्रोडक्टिविटी। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड सरप्राइजिंग रिजल्ट एंड चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखिए, और जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकला, जो आउटकम हुआ, वो क्या किया, सरप्राइज कर दिया। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरी थी उसको सरप्राइज कर दिया। सो नाउ सी द फेजेस ऑफ हाथोन एक्सपेरिमेंट। देखिए जो हमारा ये हाथोन एक्सपेरिमेंट था बेसिकली 4 फेज में हुआ है। आइए एक एक फेज उसको पढ़ते हैं, और उसके फेज के क्या स्पेसिफिक नाम है, उसका किस ड्यूरेशन के बीच वो हमारा फेज एक्सपेरिमेंट हुआ उसको देखते हैं। जो हमारा पहला फेज है वो है ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट।
तो इसको इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो 1924 टू 1927 के बीच चला। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, एमसीक्यू यहीं से बन जाएगा, ईयर वाइज से यहीं से एमसीक्यू बनेगा कि पीरियड क्या है ग्रेट इल्यूमिनेशन का, 1924 टू 1927। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेज, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लाइटनिंग कंडीशन ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। देखिए हमारे कंपनी में जितने लाइटनिंग का, बस क्योंकि हम देखिए फिजिकल कंडीशन और उसके वर्कर के प्रोडक्टिविटी के बीच रिलेशन देख रहे हैं। तो पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें उन्होंने क्या बोला, जो लाइटनिंग कंडीशन है डिपार्टमेंट का, उसको हम वेरिएशन करते हैं, चेंज करते हैं और देखते हैं वर्कर के प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और इसका एक्सपेरिमेंट का नाम ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 टू 1927 के बीच हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मायो जी ने 2 ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप फॉर्म किए और वो 2 ग्रुप बेसिकली के थे, गर्ल्स की थी उसमें, मतलब मेन एक भी नहीं था, गर्ल्स इन्वॉल्व में थे और 6 का ग्रुप बनाया, 6 गर्ल्स एंड 6 गर्ल्स, 6 लड़कियों का क्या ग्रुप बनाया। उन ग्रुप को क्या क्या अलग अलग नाम दिया, पहले को क्या दिया एक्सपेरिमेंट ग्रुप और दूसरे को क्या दिया कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट ग्रुप, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप। देखिए 2 ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स वर क्रीडेड। पहला था हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या था, जो लाइटनिंग थी उसको क्या किया, वेरिएशन किया, चेंज किया। एंड दूसरा जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था उसमें क्या था, लाइटनिंग कांस्टेंट था, लाइटिंग को मतलब चेंज नहीं किया। तो यही करके उन्होंने काफी दिन चलाया बेसिकली। देखिए 1924 टू 1927 तक बेसिकली 6 लड़कियों का ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किए और ये बहुत दिन चला। फिर इसका क्या हुआ, एक रिजल्ट देखा और रिजल्ट क्या था, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। देखिए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन बोथ ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ लाइटनिंग चेंज। देखिए अब क्या हुआ, रिगार्डलेस ऑफ लाइटनिंग चेंज हमारा क्या प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे ये इसका आउटकम निकला कि जो हमारा फिजिकल कंडीशन था है वो वर्कर के प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। फिजिकल कंडीशन डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्टिविटी, इसका ये आउटकम निकला। सो कंक्लूजन, प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय फिजिकल कंडीशन बट आल्सो बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि अर्ली स्टेज इंक्वायरी जो थी, फर्स्ट इंक्वायरी उसमें बता दिया है कि ओनली फिजिकल से नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी हमारा प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। सो वर्कर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बिकॉज दे फेल्ट स्पेशल अटेंशन फ्रॉम द रिसर्चर। और ये भी फाइंडिंग हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हुई, क्योंकि उनको पता था कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, स्पेशल अटेंशन हमें दे रहा है, हमारे ऊपर क्या हुआ, स्टडीज की जा रही है, दैट्स वाई आल्सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। सो ये हमारा क्या रहा, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नाउ मूव टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो कि हमारा 1927 में चला और 1932 तक रहा। तो इस हमें असेंबली टेस्ट रूम में क्या हुआ, देखिए बेसिकली ये सब पूछता है, ऐसे ही पूछेगा, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन है, उसमें क्या हुआ, ये सब चीजें। सो ऑब्जेक्टिव, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑन द प्रोडक्टिविटी। देखिए अब देखिए, अभी तो हमने फिजिकल कंडीशन देखिए, अब देखेंगे वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन का क्या मतलब कि इफेक्ट रहा है प्रोडक्टिविटी पे। सो चेंजेस इंट्रोड्यूस रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट विथ एंड रेस्ट पॉज। देखिए ये वाला हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया था कि रेस्ट पॉज 10 मिनट का गैप का रेस्ट दो, वर्किंग कंडीशन में क्या होगा, इससे फटीग हमारा रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी क्या हुई थी, बढ़ी थी। तो वर्किंग कंडीशन क्या करेगा, हमारे वर्कर के प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। सो देखिए जो इनमें रिसर्चर का एक्सपेरिमेंट किया था वो रेस्ट पॉज वाला एक्सपेरिमेंट में आया था, जो 10 मिनट का रेस्ट दिए। तो इसमें क्या इन्होंने सजेस्ट किया, शॉर्टर वर्किंग आवर होना चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम होना चाहिए और फ्रेंडली सुपरविजन होना चाहिए। सो फाइंडिंग ऑफ दिस, देखिए दीज आर द सजेशन आई हैव आल्सो टोल्ड यू इन फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट में। सो फाइंडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कंटिन्यूअसली, वर्कर्स डेवलप टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन, फ्रेंडली सुपरविजन, इंप्रूव्ड मोरल। सो कंक्लूजन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स व्हेन वर्कर फील रिकॉग्नाइज्ड, सपोर्टेड, पार्ट ऑफ अ ग्रुप। देखिए हमारा क्या हुआ, जब हमारे वर्कर को लगा कि मैं एक ग्रुप का पार्ट हूं और हमें कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, मुझे मतलब एक पॉपुलरिटी दी जा रही है, मुझे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें जो सुपरवाइजर से क्या है फुली सपोर्ट मिल रहा है,
तो सब क्या है, हमारे वर्किंग कंडीशन में चेंजेस हुआ थोड़ा सा, और हमें रेस्ट दिया जा रहा है, हमारे वर्किंग कंडीशन को भी कम किया जा रहा है। तो ये सब वेलफेयर के पॉइंट थे। इसको देखते हुए क्या हुआ, हमारे वर्कर गेट मोटिवेटेड एंड देयर प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। सो दिस फिनोमिना बिकम नोन एज द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। और यही जो फिनोमिना हुआ उसको हम बोलते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, हॉथॉर्न इफेक्ट। सो डोंट फॉरगेट व्हाट इज द हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट यही हुआ कि जो हमारा वर्किंग कंडीशन में चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए, हमारा वर्किंग आवर कम हुआ, रेस्ट टाइम मिला, वेज और एक्स्ट्रा वेजेस मिले अच्छे मतलब परफॉर्मेंस के लिए, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, सपोर्ट किया गया, पार्ट ऑफ ग्रुप माना गया। सुपरवाइजर से क्या हुआ, उनको अच्छा सुपरविजन मिला, फ्रेंडली सुपरविजन। इस सबसे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हॉथॉर्न इफेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, जो कि 1928 से 1931 के बीच, 1928 टू 1931 के बीच कंडक्ट किया गया था, जिसको मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम बोलते हैं। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, देखिए जो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 1928 टू 1931 के बीच कंडक्ट किया गया था, इसको हम और बोलते हैं एक नाम से, इसको बोलते हैं ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटीमेंट्स। कुछ भी पूछ सकता है, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटीमेंट्स। देखिए इस एक्सपेरिमेंट का ये भी नाम है, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटीमेंट्स। बेसिकली उसमें हमें ह्यूमन के जो इमोशंस थे, उनका सेंटीमेंट्स थे, इस सब पे क्या किया, फोकस किया गया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटीमेंट्स और मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। बेसिकली इसमें क्या हुआ था, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो एम्प्लॉय थे उनको क्या किया, अपॉर्चुनिटी दिया गया। इंटरव्यू मतलब एक फ्रेंडली इंटरव्यू कराया गया, जिसमें उनको पूछा गया कि क्या आप लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, कंपनी के बारे में सब कुछ बताइए, अपने सुपरवाइजर से लेके रूल रेगुलेशन से लेके सब कुछ के बारे में फ्रीली ओपन अप होके बोलिए। तो इसी को बेसिकली मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम बोलते थे। इसमें एम्प्लॉय के जो पर्सनल पर्सपेक्टिव थे उसको पूछा गया रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो टू अंडरस्टैंड वर्कर एटीट्यूड्स एंड फीलिंग अबाउट दियर जॉब्स, उनके जॉब के बारे में, जॉब को लेकर सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, सब कुछ पूछा गया। रिसर्चर्स कंडक्टेड ओवर 20,000 इंटरव्यू विद द एम्प्लॉइज। देखिए इतने बहुत सारे एम्प्लॉइयों को मतलब क्या क्या उन्होंने पर्सपेक्टिव जाना। बेसिकली अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिसर्च करना है एम्प्लॉय के ऊपर, तो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को पर्सपेक्टिव के हमें जानना बहुत जरूरी है कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है मैनेजमेंट को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन को लेके, और उनका क्या फैक्टर्स है जो जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब डिससेटिस्फेक्शन उनको लीड करता है। तो सब अगर आप जानोगे तब ना कोई नया पॉलिसी कुछ सजेशन दे सकोगे उस प्रॉब्लम को ओवरकम होने के लिए। सो नाउ सी द फाइंडिंग्स, क्या फाइंडिंग की है हमारे मायो जी ने। वर्कर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट, देखिए पहले वर्कर ने क्या कंसर्न किया, मतलब एक्सप्रेस किया। सुपरविजन में को बताया उन्होंने, जॉब सिक्योरिटी के बारे में लेके बताया, वर्किंग कंडीशन को लेके बताया, एंड पर्सनल रिलेशनशिप को लेके बताया। इस सब चीज को लेके वर्कर ने फ्रीली क्या हुआ, ओपन अप होके बोले। देखिए जो इनका रिसर्च टेक्निक रहा, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया वहाँ उस कंपनी के वर्करों को लेके, क्योंकि वर्कर वहाँ अप्रिशिएट किए, क्योंकि जो उनका मेथड था इंटरव्यू करने का, मतलब डेटा लेने का, बहुत ही अच्छा रहा। और इससे क्या हुआ, उनके मतलब वर्किंग कंडीशन में भी अच्छा रहा। जो सुपरवाइजर का जो बिहेवियर रहा वर्कर को लेके, वो भी चेंज हो गया और अच्छे से हो गया। तो इस सब चीज़ों को लेके क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलराइज्ड हुए। सो कंक्लूजन, एम्प्लॉय वांट रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस दियर ओपिनियन। देखिए इस सब इंटरव्यू करने के बाद, सबका पर्सनल ओपिनियन जानने के बाद, जो हमारे मायो जी ने क्या किया, एक कंक्लूजन दिया कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो क्या, उनको क्या चाहिए, उनको अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिकॉग्निशन चाहिए, उनका भी एक वैल्यू होना चाहिए, इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ना कि मशीन ट्रीट किया जाना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब उनके काम के प्रति उनको लेके उनको एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड्स को उनका क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस दियर ओपिनियंस, और उनके जो ओपिनियंस होंगे, उनके थॉट्स होंगे, उसको भी क्या किया जाना, कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को क्या किया उन्होंने, कंक्लूड किया अपने रिसर्च में और अपने सजेशन में। सो दच कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ फोर्थ एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, जो कि 1931 से लेकर 1932 के बीच रहा। तो इसका नाम है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। देखिए नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है इसको मैं बताता हूँ। बेसिकली इसको सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। सो आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। देखिए जो हमारा फाइनल
स्टेज रहा एक्सपेरिमेंट का, उसका नाम दिया गया बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। वाई इट इज कॉल्ड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट? बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द डिपार्टमेंट इन विच वर्कर वर्किंग ऑन सोल्डरिंग वायरिंग, जिसमें कि वर्कर क्या करते थे, किसी भी प्लेट के 2 टर्मिनल को सोल्ड करते थे, वायरिंग लगाते थे, उसमें सोल्डरिंग का काम होता था। बेसिकली वायर वगैरह को जोड़ने का काम था, सोल्डर करते थे। वहाँ वहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। बेसिकली ये सोल्डर वाला मत समझिएगा, जो सोल्डरिंग हमारे टेलर जी ने बताया था, ये वो है जो हम इलेक्ट्रिक दुकान वगैरह पे करते हैं, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे जो सोल्डरिंग होता है वो। ऐसे कोई प्लेट था, उसके दोनों टर्मिनल पर सोल्डरिंग करना था, वायर को फिक्स करना था। वर्कर का जॉब बस इतना ही था। उस डिपार्टमेंट में अपना एक्सपेरिमेंट किए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। सो objective to study group behavior in organizations methods. A group of workers was observed without any changes in working conditions. So finding, workers created informal group with their own rules. These informal groups control productivity through group norms such as do not work too fast, do not work too slow, protect fellow workers. देखिए मैं आपको मतलब एक सिंपल स्टोरी में बताता हूँ क्या है। ये जो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन जो सोल्डरिंग वाले डिपार्टमेंट में किया गया था, उसमें बेसिकली ये देखा गया कि इतने अच्छे कंडीशन और रूल रेगुलेशन होने के बाद भी, फॉर्मल स्ट्रक्चर होने के बाद भी, जो वर्कर थे उस ग्रुप में, जितने भी वर्कर थे वो क्या थे, एक इनफॉर्मल ग्रुप, अपना इनफॉर्मल ग्रुप बना लिए। इनफॉर्मल ग्रुप बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनका सोशल रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा और क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति उनका क्या होगा, ट्रस्ट रहेगा। तो बट इसके बावजूद भी उनका क्या था, प्रोडक्शन अच्छा था, मतलब ठीक ठाक प्रोडक्शन था। बट जो मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड था एक लेवल आउटपुट, वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा वेज सिस्टम था, इंसेंटिव वेज सिस्टम क्या था, वो टोटल आउटपुट पे था, ग्रुप आउटपुट पे था, ना कि इंडिविजुअल आउटपुट पे था। तो ग्रुप में मतलब सारे ग्रुप के जो आउटपुट निकलेगा, उससे जो इंसेंटिव मिलेगा, उससे क्या होगा, सारे वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे मतलब खास ज़्यादा फोकस नहीं रहा इंडिविजुअल के इंसेंटिव पे। तो लोग क्या थे, इसके प्रति कोई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं करते थे। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में क्या था, प्रोडक्शन था। और ये किस किस के लिए था, मतलब चाहे तो वर्कर कर सकते थे, अगर वो इफर्ट डाली इंडिविजुअली तो कर सकते थे, प्रोडक्टिविटी अच्छा खासा कर सकते थे, बट नहीं करते थे क्योंकि ग्रुप प्रेशर के लिए। मतलब ग्रुप में सभी लोगों का था, किसी का मन होगा किसी का नहीं होगा, बट क्या होगा, कोई ज़्यादा कर देगा तो किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंसेंटिव क्या होगा, हमारे ग्रुप को मिलेगा, इंडिविजुअल को तो मिलेगा नहीं। ये सब चीज़ थे। तो उन्होंने जो मायो जी ने ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया और फैक्ट फाइंड किया, उसमें कुछ उन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए जो आउटपुट को कंस्ट्रेंट करते थे, रेस्ट्रिक्ट करते थे। उस टर्म को इन्होंने कुछ स्पेसिफिक नाम दिया और वो नाम हमारा एमसीक्यू में हर बार आता है। अभी दिसंबर जो नेट का एग्जाम हुआ था 25 वाले में, उसमें एक आया था। तो उसमें बेसिकली 3 वर्ड ऐसे थे जो यूनिक नाम है, जो कि बेसिकली रिलेटेड है, जो कि आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करना या तो कंस्टेंट है जो उसके रिगार्डिंग है। तो 3 नाम मैं आपको बताऊंगा, वो आप लोग मस्ट रिमेंबर कीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपको मतलब एमसीक्यू में आएगा। तो देखिए जो हमारे जो तीनों नाम है वो मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या थे, जैसे वर्कर हमारे ग्रुप में काम करते थे तो चाहे तो उनका आउटपुट बढ़ सकता था, और चाहे तो बट वो नहीं इंटेंशनली नहीं बढ़ाते थे, उसको मेंटेन करते थे। और ग्रुप में क्या थे, जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो काम को मतलब एक डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए, जो ग्रुप का आउटपुट होना चाहिए, उससे भी कम काम करते थे। इसके लिए एक और नाम दे दिया गया। एक तो जो मतलब ज़्यादा काम करेंगे उसको, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया। एक तो जो कम काम करेंगे उसके लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया। और एक तो उनके लिए नाम दिया गया जो अपने सुपरवाइजर को कोई भी बात, अपने ग्रुप एसोसिएट का बात जाके सुपरवाइजर को बताएंगे, उसके लिए नाम दिया गया। 3 नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली वो क्या क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग इसको ध्यान कीजिएगा। पहला हमारा नाम है रेट बस्टर। रेट बस्टर। सेकेंड है हमारा चिसलर। एंड थर्ड वन इज स्क्विलर। आइए अब देखते हैं रेट बस्टर किसको बोला गया, चिसलर किसको बोला गया, स्क्विलर किसको बोला गया। पहले देखिए रेट बस्टर को क्या बोला गया, मतलब किसे बोला गया। वन शुड नॉट टर्न आउट टू मच वर्क, इफ वन डज ही इज अ रेट बस्टर। देखिए उनमें बता कि वन शुड नॉट टर्न आउट टू मच वर्क, अगर कोई बहुत ज्यादा काम कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेट बस्टर बोलेंगे।
So one should not turn too much work. अगर one should not turn too much work, if one does then it is called red bastard. And second, देखिए सब ऐसे पॉइंट आएगा, ऐसे नहीं आएगा, रेड बस्टर नहीं आएगा, ऐसे बोलेगा वन शुड नॉट टर्न टू मच वर्क माय रिगार्डेड दिस स्टेटमेंट टू रेड बस्टर, ऐसे करके कुछ ना कुछ बना के पूछेगा. सो ध्यान कीजिएगा, वन शुड नॉट टर्न टू मच वर्क, अगर टू मच वर्क कोई करेगा तो उसको बोलेंगे रेड बस्टर्ड. एंड सेकेंड वन, वन शुड नॉट टर्न आउट टू लिटिल वर्क. वन शुड नॉट टर्न आउट टू लिटिल वर्क. अब देखिए जो बहुत कम काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, चिसलर बोलेंगे. मतलब अपोजिट देखिए, एक बहुत ज्यादा काम करेगा रेड बस्टर, बहुत कम काम करेगा चिसलर, और जो अपने सुपरवाइजर को बताएगा वो क्या होगा, स्कूलर. वन शुड नॉट टेल अ सुपरवाइजर एनीथिंग. वन शुड नॉट टेल ए सुपरवाइजर एनीथिंग इफ वन टेल इट इज कॉल्ड एज स्क्वीलर. देखिए एक और पॉइंट है, चौथा, बेसिकली ये तो नहीं पूछा है अभी तक एग्जाम में, बट क्या पता पूछे, इसको भी ध्यान दीजिए. इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर किसको बोलते थे, वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस. मतलब जो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना चाहिए अपने ग्रुप में, अपने बाकी ग्रुप के लिए बोला गया है. अगर कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे इंस्पेक्टर. वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू मेंटेन सोशल इफ वन डज मेंटेन देन इट इज कॉल्ड इंस्पेक्टर. सो देखिए हमारे 4 पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए. पहला रेड बस्टर, वन शुड नॉट टर्न टू मच वर्क, इफ वन डज इट इज कॉल्ड रेड बस्टर्ड. सेकंड चिसलर, वन शुड नॉट टर्न आउट टू लिटिल वर्क, इफ वन डज देन इट इज कॉल्ड चिसलर. And third one is squealer, one should not tell a supervisor anything detrimental to associate, if one tell it is called squealer. And fourth one is inspector, one should not attempt to maintain social distance, if one maintain it is called inspector. देखिए हमारा ये 4 टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एमसीक्यू में ये आते हैं. सो जो कंक्लूजन रहा है अब बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट का, उसका कंक्लूजन रहा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस वर्कर बिहेवियर. देखिए हमने यहाँ देख लिया कि कोई मतलब एक चाहते तो आउटपुट को बढ़ा सकते थे, बट एक दूसरे के प्रेशर की वजह से नहीं बढ़ाएं. सो नाउ सी द मेन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. नाउ सी द प्रिंसिपल्स क्या रहे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के, वो देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर. सो वर्कर्स आर नॉट मशीन, दे हैव. देखिए पहला जो प्रिंसिपल रहा उनमें बताया गया कि जो हमारे वर्कर है वो मशीन नहीं है, और वो क्या है, उनका क्या होता है, उनके पास एक इमोशन होगा, एटीट्यूड्स होगा, सोशल नीड होंगे उनके कुछ, ये सब होंगे. तो बेसिकली वो क्या करेगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. सो उन्होंने बताया कि इस प्रिंसिपल में इग्नोरिंग दीज फैक्टर्स रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. अगर हम इस फैक्टर को अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी. एंड सेकेंड पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सोशल डायमेंशन है. सोशल डायमेंशन को भी अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या प्रिंसिपल बताया हमारे मायो जी ने, इनफॉर्मल ग्रुप डेवलप नेचुरली विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, दिस ग्रुप इन्फ्लुएंस वर्कर्स बिहेवियर, कम्युनिकेशन, मोरल, प्रोडक्टिविटी. इस सबको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होगा. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम्स बी मोर पावरफुल देन फॉर्मल स्ट्रक्चर. एंड थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. सो जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिना कम्युनिकेशन के क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता. दैट्स वाई कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंप्रूव ट्रस्ट,
कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी। अगर देखिए हमारा कम्युनिकेशन अच्छा सा हो रहा है तो हमारे जो मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच क्या होगा, एक हार्मनी क्रिएट होगा, उनमें क्या होगा, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, एक कोऑपरेशन होगा। तो क्या होगा, जो एक बैरियर होता है ना मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बैरियर हट जाएगा, गैप खत्म हो जाएगा अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, लीडरशिप वगैरह अच्छा है। एंड फोर्थ पॉइंट, जब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सब क्या थे, प्रिंसिपल थे, सजेशन बताए मायो जी ने ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी के लेके, बेस्ड ऑन सोशल डायमेंशन एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन के हिसाब से। सो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या है, इंप्लॉइज शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। देखिए जो हमारे इंप्लॉय है उनको भी डिसीजन मेकिंग जो एक्टिविटी हो, प्रोसेस हो, उनमें इनको इन्वॉल्वमेंट करो। सो पार्टिसिपेशन इंक्रीज, जो अब उनका पार्टिसिपेशन होगा तो इससे मैं क्या एडवांटेज होगा, सो इससे हमारा जो होगा वर्कर का मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, और इससे क्या होगा, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा हम ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, हमारे थॉट्स का क्या है, वैल्यू है, दैट्स वाई दे गॉट दियर जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। सो इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप शुड बी डेमोक्रेटिक एंड सुपर सपोर्टिव होना चाहिए। हमारा जो लीडरशिप क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए। सो ए गुड लीडर शुड encourage teamwork, means that build spirit de corps, build trust among the employee and management, improve morale of the workers so that they work hard and gain the organization efficiency. Now see the Hawthorne effect क्या है, मैंने Hawthorne effect को बता दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा Hawthorne effect क्या है। The Hawthorne effect means workers improve their performance when they receive attention and feel importance. It highlights the psychological and impact of observations and recognition on the worker productivity. So 7 point contribution of human relation approach। देखिए अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में। सो हियर आर सम पॉइंट। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम मशीन टू ह्यूमन बीइंग। देखिए हमारा जो क्लासिकल अप्रोच था वो मशीन के ऊपर फोकस किया था, मतलब जो ह्यूमन को एज ए मशीन फोकस किया गया था, तो हमारा जो फोकस था शिफ्ट हो गया फ्रॉम मशीन टू ह्यूमन बीइंग के ऊपर। सेकेंड वन इज हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। एंड थर्ड वन इज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीडरशिप एंड मोटिवेशंस। नेक्स्ट इन्फ्लुएंस मॉडर्न फील्ड लाइक। देखिए जो मॉडर्न फील्ड है अभी सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस हुए, उनमें क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में चेंजेस हुए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चेंजेस हुए, एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हुआ। इस सब क्या हुए, चेंजेस हुए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के द्वारा। नाउ सी द क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। देखिए अभी हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अभी कुछ कंटेंट हमने उठाएंगे जो हमारा एम लक्ष्मीकांत बुक में दिया है। बेसिकली अभी मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ आपको प्रसाद एंड प्रसाद बुक से था, बट मैं आपको कंटेंट सब मिक्स करके बता रहा हूँ, प्रसाद एंड प्रसाद से और एमए के जो इग्नू के बुक्स है उससे और एम लक्ष्मीकांत से। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट छूट जाए, इसलिए मैं, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा चलेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे चलेगा, बट कोई भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए, इसलिए अभी मैंने क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने कुछ कंटेंट दूंगा एम लक्ष्मीकांत बुक से, देन उसके बाद हमारा एक क्या होगा, टॉपिक कंप्लीट होगा। सो सी द क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। देखिए डिस्पाइट इट कंट्रीब्यूशन द अप्रोच हैज सेवरल क्रिटिसिज्म। So first point is over emphasis on social relationship. So over emphasis on social relationship। देखिए जो हमारे हाथों ने एक्सपेरिमेंट क्या क्रिटिसिज्म हुआ कि जो सोशल रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्रिटिक आर्ग्यू दैट द अप्रोच exaggerated the importance of friendliness and harmony. सेकेंड पॉइंट, निगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे क्या किया, इसमें निगलेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया। वर्कर्स आर आल्सो मोटिवेटेड बाय सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन। देखिए अब रियलिटी में तो यही है कि जो हमारे वर्कर्स होंगे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी सबसे भी मोटिवेट होंगे, बट हमारे जो मायो जी ने क्या किया, इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया, ओनली सोशल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। तो इस सब बेस पे क्या हुआ, वो हमारे इल्टन मायो का जो प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी था वो क्रिटिसाइज हुआ। थर्ड पॉइंट इज मैनिपुलेटिव अप्रोच। Some critics say it was used by management to manipulate workers into cooperations। देखिए अब क्या बताया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको क्रिटिक ने बोला कि ये इनकी जो मायो के सारे सजेशन है बेसिकली मैनिपुलेटिव है, और कौन मैनिपुलेट करेगा, मैनेजमेंट करेगा, और किसको, वर्कर को करेगा। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल पैसे सैलरी वगैरह तो ना दे, बट उनको क्या करे, मोटिवेट करके सोशल
रिलेशनशिप को क्रिएट करके, इस सब से क्रिएट करके क्या करे, वर्कर को मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाए और पैसे ना दे, पैसे नहीं कम देना है। जैसे कि इस सब बेस पे क्या हुआ, हमारी थ्योरी क्रिटिसाइज की गई। एंड फोर्थ वन इज अ लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर। So some conclusion of the Hawthorne experiment are questioned by later researchers. अभी इसमें इसको मैं बताऊंगा किस बेस पे, साइंटिफिक बेस पे कैसे क्रिटिसाइज किया गया। नाउ सी द सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाथोन एक्सपेरिमेंट का सारे ऑब्जर्वेशन थे उनका क्या सिग्निफिकेंस है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिमेन्स हाईली रेलिवेंट इन मॉडर्न गवर्नेंस। सो एप्लीकेशन इंक्लूड, देखिए क्या क्या एप्लीकेशन अभी जो मॉडर्न गवर्नेंस में इंक्लूड कर रहा है मायो का। पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी अब देखिए जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के सिनेरियो मतलब ट्रेंड चल रहा है। एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो अब देखिए अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम बनाया जाएगा, एक एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर भी नियुक्त किया जाता है। बेसिकली ये सब क्या है, आउटकम्स है हाथोन के। टीम बेस्ड वर्क सिस्टम, लीडरशिप डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइजेस दैट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स बोथ टेक्निकल एफिशिएंसी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। देखिए ये सब अभी आप देख रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सब आपको अभी इजीली देखने को मिलेगा, बट उस टाइम 1930s में ये सब बहुत ही क्रिटिकल था, ये सब नहीं था। तो रिसर्चर ने यही सब क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, आउटकम्स दिए, सजेस्ट किए, तो सब अभी हमें इजी मिल रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो कंक्लूजन, the human relation approach developed by Hilton Mayo marked a major turning point in administrative theory. Through the Hawthorne experiments, it demonstrated that human behavior, social relationships, and psychological factors significantly influence productivity. Thus, it laid the foundation for modern organizational behavior, participatory management, and human resource development in public administration. So, apart from this, I will add some extra content from M. Lakshmikant book. So, please with me. So, देखिए हमारा ये जो है पॉइंट, एलिमेंट एंड फीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के द्वारा। तो बेसिकली एम लक्ष्मीकांत से कंटेंट है। सो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 एलिमेंट। देखिए जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिकली 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट क्या है, द इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, द इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सो एक एक करके देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया है एलिमेंट बेसिकली जो हमारे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो द इंडिविजुअल जो पहला एलिमेंट है। सो देखिए इंडिविजुअल, इसमें बेसिकली मायो जी ने बताया कि किसी भी ग्रुप में जो हमारा वर्कर होंगे उनके खुद के कुछ क्या होंगे, एक्सपेक्टेशन होंगे, उनके खुद के कुछ स्किल होंगे, और उनके उस स्किल के बेस पे उनका जो होगा जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए जॉब ऑर्गेनाइजेशन में लेके कुछ उनके क्या होंगे, अपना इंपॉर्टेंस होंगे, एक्सपेक्टेशन होंगे, होप होंगे। तो इस सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, फोकस दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एक्टिविटीज हो रही है, तो वहाँ पे उनको मतलब फिजिकल कंडीशन के अलावा कुछ ऐसे उनके क्या होंगे, अपने चॉइस होंगे, जिससे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन को क्या मिले, लीड मिले। सो देखते हैं द इंडिविजुअल थ्योरी क्या बताता है। द थ्योरी रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस एंड परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। The level of workers' production and organizational output is determined by the human relationship at work rather than physical and economic condition of work. According to Ruethelsberg, each person is unique. Each is bringing to the job situation certain attitudes, beliefs, and ways of life, as well as certain skills, technical, social, and logical. In terms of his previous experience, each person has a certain hopes and expectation of his जॉब सिचुएशन। देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है इसमें। बेसिकली ये बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम जो फिजिकल कंडीशन होता है, जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है आप वर्क के, इसके अपार्ट फ्रॉम कुछ वर्कर के क्या होंगे, अपने अलग के स्किल होंगे, यूनिक स्किल्स होंगे, जैसे टेक्निकल स्किल हो गया, सोशल हो गया, लॉजिकल हो गया। तो इस सब के अकॉर्डिंग जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस होंगे, इसके बेस पे क्या होंगे, उनके कुछ अपना एक्सपेक्टेशन होगा, होप होगा जॉब के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो बेसिकली उसमें हमें क्या, इंडिविजुअल को भी फोकस करना है ग्रुप में। तो बेसिकली ये पॉइंट है। सेकेंड वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एम्फेसाइजेस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारा जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थ्योरी था बेसिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्या किया है, एम्फेसाइज किया है। तो बेसिकली ये एलिमेंट बताया गया है, यही हमारा दूसरा एलिमेंट है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, द ह्यूमन रिलेशन
थ्योरी emphasizes the informal organization as observed by Hicks and Goulet. देखिए हिक्स और गुलेट देखिए इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है द इनफॉर्मल शैडो ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन्होंने बताया, जो हिक्स एंड गुलिंग ने बताया कि हमारा इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पैरेलल में एग्जिस्ट करता है। So attention is focused on the social aspect of man whose overriding need is seen as a desire to belong, to accepted by and stand well in his work group. Here important point, LD White defined an informal organization as the set of work relationship that grow output of the mutual interaction of person working together over a long period of time. सो देखिए एल डी वाइट ने कुछ डिस्टिंक्शन बताए हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सो देखिए हम क्या होते हैं, पहले तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ कस्टमरी। देखिए हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ है, कस्टमरी होगा, वाइल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ इनेक्टेड। सो सेकेंड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ रिटेन एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू नीट डायग्राम, वाइल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिटेन, मैनुअलाइज्ड एंड पोर्ट्रेट इन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। देखिए बेसिकली यहाँ बताया गया कि जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, हमारा एक कस्टमरी होगा, मतलब एक सोशल ग्रुप के द्वारा एक क्रिएट किया जाएगा, और हमारा वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एक इनेक्टेड होगा, मतलब बनाया जाएगा। और वो कैसे बनाया जाएगा, जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा बिना कोई रिटर्न नहीं होगा, उसका कोई नीट एंड क्लीन कोई डायग्राम नहीं होगा, मतलब एक अनस्ट्रक्चर्ड होगा। वहीं पे हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वेल प्लान्ड होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, मैनुअलाइज्ड होगा, तो हमारा क्या होगा, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड थर्ड वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू बी इमोशनल एंड पर्सनल, वाइल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बी रेशनल एंड इम्पर्सनल। देखिए अब यहाँ बताएगा जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा किस पे फोकस करेगा, लोगों के इमोशन पे, पर्सनल वैल्यू पे करेगा, और वहीं पे हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन पे क्या करेगा, फोकस करेगा। And fourth one is a informal organization is a spontaneous and societal, while formal organization is a planned and legal होगा। देखिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली कहीं पे क्रिएट हो जाएगा, वाइल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेल प्लान्ड होगा और लीगल। एंड थर्ड एलिमेंट इज अ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सो द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एडवोकेट्स द style of participative management, that is participation of workers in the decision making with regard to their work condition। देखिए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का जो एलिमेंट बताया, बेसिकली इस बेस पे बताया कि जो हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उनमें बेसिकली एम्प्लॉय को भी, हमारे वर्कर्स को भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सो दैट दे शुड गेट रिकॉग्नाइज, दे फील दैट दे आर इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ओपिनियंस आर वैल्यूड। तो उनको क्या होगा, अच्छा लगेगा, और उससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी पे बढ़ेगा। यही हमारा एलिमेंट है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का। नाउ सी द क्लासिकल वर्सेस ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पे आप डिफरेंसेस देखेंगे, जो हमारा क्लासिकल अप्रोच रहा उसके बीच और ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच हमारा क्या डिफरेंसेस है, बेसिकली उसको देखेंगे। सो बेसिकली डायग्राम है, उसके बेस पे देखेंगे। हमारा ये एक मतलब इस डिटेल में दिया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट इन क्लासिकल थ्योरी, देखिए बेसिकली क्या क्या फोकसेस रहा है, क्या क्या प्रिंसिपल रहे, क्या क्या अप्रोच रहे क्लासिकल में, उसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और क्या क्या हुआ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, उसको ड्रॉ किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सो क्लासिकल थ्योरी में पहले क्या होता था, देखिए इम्फेसाइज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्लासिकल थ्योरी में था, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर पे क्या किया गया, फोकस किया गया था। वहीं हमारे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या क्या किस पे फोकस किया गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। और क्लासिकल थ्योरी में क्या हुआ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे फोकस किया गया था। सेकेंड पॉइंट, व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज अ रेशनल एंड इम्पर्सनल सिस्टम। देखिए वही बताया गया, जो क्लासिकल थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन को क्या गया है, एक रेशनल मतलब रूल बेस्ड बोला गया, और वहाँ पे इम्पर्सनलिटी होनी चाहिए। और वहीं हमारा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में किस पे फोकस किया गया, इमोशंस पे, सोशल वैल्यू पे, इस सब पे फोकस किया गया। एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक मैन। देखिए हमारा जो क्लासिकल थ्योरी था, वर्कर को क्या बोला गया, इकोनॉमिक मैन बोला गया। वहीं पे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में जो वर्कर्स थे उनको क्या बोला गया, सोशल मैन बोला गया। फोर्थ पॉइंट, इन क्लासिकल थ्योरी emphasize द फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो हमारे क्लासिकल थ्योरी में था कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फिजिकल कंडीशन एंड मैकेनिकल एस्पेक्ट पे क्या किया गया, फोकस किया गया था एफिशिएंसी को लेके। बट वहीं हमारे ह्यूमन रिलेशन
थ्योरी में क्या किया गया था, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे क्या किया, फोकस किया गया रेदर देन फिजिकल कंडीशन। एंड फिफ्थ पॉइंट इज बिलीव्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द मैनेजमेंट। देखिए जो हमारे क्लासिकल थ्योरी में क्या बिलीव था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो किस पे डिपेंड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे, जो मैनेजमेंट बनाएगा उसके रूल रेगुलेशन पे डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की टोटल प्रोडक्टिविटी, इस चीज पे बिलीव करते थे। वहीं हमारे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या बिलीव करते थे, बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एटीट्यूड, सेंटीमेंट्स एंड फीलिंग ऑफ एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर प्रोडक्ट होगा, मतलब आउटपुट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे, जो कि होगा एटीट्यूड, सेंटीमेंट्स एंड फीलिंग ऑफ द एम्प्लॉय। एंड सिक्स पॉइंट इज एज्यूम्स दैट पीपुल आर होमोजीनियस। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो लोग होंगे वो होमोजीनियस होंगे, एक ही होंगे, मतलब एक कोई ग्रुप में सारे लोग को क्या बोला गया, एक बोला गया। जो हमारा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जो पहला एलिमेंट था इंडिविजुअल, उसमें ये चीजें क्लियर स्पष्ट की गई है कि होमोजीनियस नहीं है। जो एज्यूम दैट पीपुल आर हेट्रोजीनियस, देखिए इंडिविजुअल का कुछ अपना एक्सपेक्टेशन होगा, होप होंगे, स्किल होंगे, तो इसलिए ग्रुप क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा, किसमें, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। नेक्स्ट पॉइंट, इम्फेसिस ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ सुपरविजन। ऑथोरिटेरियन स्टाइल सुपरविजन में मतलब होता है जो एक रूल रेगुलेशन बेस्ड जो होता है, मतलब एक स्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, वो सुपरविजन होगा हमारा क्लासिकल थ्योरी में। वही ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या होगा, इम्फेसिस डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सुपरविजन। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सुपरविजन बेसिकली क्या होगा, एक फ्रेंडली होगा, जिसमें मतलब कि सुपरवाइजर हमारे वर्कर के साथ घुल मिल के उनके अकॉर्डिंग, उनके भी डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। 8 point, takes the atomistic view of man एंड टेक अ सोशल वैल्यू ऑफ मैन। देखिए इसमें क्या गया, एटोमिस्टिक व्यू से क्या होता है, बेसिकली एक बोला गया है कि जो वर्कर होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मतलब एक सोसाइटी से अलग होंगे, मतलब उनको एक अलग बताया गया, इसलिए इसको बोला गया एटोमिस्टिक व्यू बोला गया। वही हमारा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या बोला गया है, वर्कर को सोशल व्यू बोला गया है, कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अलग नहीं होते, वो ग्रुप में सबके साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं। And the next point is state that organizational efficiency depends on the structural built according to the principles। देखिए अब बताया गया कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो बनाया गया होगा मैनेजमेंट के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, उस पर डिपेंड करेगा। वही हमारा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या बताया गया है, स्टेट दैट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिलेशंस एंड वर्कर सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। इस सब पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन क्लासिकल थ्योरी फोकसेस ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब। देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट का तो हमारा इल्टर मायो ने अपने एक्सपेरिमेंट, हाथों ने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट किया और क्लियरली डिफाइन किया कि फिजिकल कंडीशन पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। तो देखते हैं, फोकसेस ऑन द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब, इन्होंने बोला था कि सोशल इन्वायरमेंट ऑफ जॉब पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। नाउ सेकेंड डिफरेंस देखेंगे। अब टेलर, देखिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसके बीच और मायो के बीच क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली टेलर वर्सेस मायो। देखिए हमारा फर्स्ट जो डायग्राम है, लिस्ट है, वो टेलर के रिगार्डिंग है, सेकेंड हमारा मायो के रिगार्डिंग है। सो एक एक करके देखते हैं। सो टेलर बेसिकली देखिए सब पॉइंट टेलर के हैं और ये पॉइंट मायो के हैं। सो ही प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। देखिए टेलर ने ही इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट दिया था, वहीं पे मायो ने क्या दिया, सोशल मैन का कंसेप्ट दिया। ये सब बेसिकली आएगा एग्जाम में, आप लोग याद कीजिएगा जो डिफरेंसेस, कौन क्या कंसेप्ट दिया है। टेलर ने इकोनॉमिक मैन कंसेप्ट दिया, मायो ने सोशल मैन कंसेप्ट दिया। एंड टेलर viewed वर्कर एज आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड इंडिविजुअल। बेसिकली एटोमिस्टिक व्यू उसी को बोलते हैं, और सोशल व्यू हमारा ये है। मायो क्या करते थे, वर्कर एज ए सोशल एनिमल, मतलब कि सोशल व्यू, और क्या है, एटोमिस्टिक व्यू, जो अभी पॉइंट हमने वहां पे क्लियर किया है। थर्ड पॉइंट, ही फोकस्ड ऑन टूल्स, प्रोसीजर्स एंड रूल्स दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल डायमेंशन। देखिए हमने टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल किया था और रूल्स वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह बताए थे, तो इस सब पे टेलर का फोकस था। और वहीं हमारा मायो का किस चीज पे फोकस था, मायो ही फोकस्ड ऑन पीपुल एंड ग्रुप दैट इज सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे फोकस किए हमारे मायो जी ने। एंड फोर्थ पॉइंट, टेलर एडवोकेटेड ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखिए ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट को क्या किया था, टेलर ने बिलीव किया था। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट होगा उसके पास ही सारा पावर होगा, वही सारा डिसीजन लेगा, वही सब कुछ होगा। वहीं हमारे मायो जी का क्या प्रिंसिपल था, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का, कि मैं जो मैनेजमेंट प्रोसेस होगा वो उसमें एम्प्लॉय का भी इन्वॉल्वमेंट होगा।
सो ये डिफरेंस है बेसिकली मायो और टेलर के बीच में। एंड फिफ्थ पॉइंट, टेलर एज्यूम्ड द ऑर्गेनाइजेशनल मैन टू बी रेशनल एंड लॉजिकल होंगे, मतलब कि रूल रेगुलेशन बेस्ड होंगे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मैन होंगे, एम्प्लॉय होंगे। वहीं मायो ने क्या बताया है, मायो एज्यूम दैट ऑर्गेनाइजेशनल मैन टू बी सोशल एंड इमोशनल मैन होंगे। कंटिन्यू। एंड द सिक्स पॉइंट, टेलर वाज कंसर्न्ड विद द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स ओनली। देखिए टेलर ने क्या किया है, वर्कर के मोटिवेशन से ओनली कंसर्न है। वहीं मायो कंसर्न विद मोटिवेशन बोथ मैनेजर एज वेल एज वर्कर दोनों के लिए। और हमारे जो टेलर थे वहीं बस ओनली वर्कर के मोटिवेशन पे क्या किया था, ध्यान किया था, मतलब फोकस किए थे, मैनेजर के नहीं। और मायो जी ने मैनेजर और वर्कर दोनों के मोटिवेशन पे क्या किया, फोकस किया था। एंड सेवन पॉइंट, टेलर एडवोकेट द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोनिस्टिक थ्योरी मतलब वही जो हमारा इकोनॉमिक मैन थ्योरी है कि जो इम्प्लॉई क्या करेंगे, पैसे पे, फाइनेंशियल रिवार्ड्स पे क्या करेंगे, मोटिवेटेड होंगे। वही मायो जी ने क्या बोला, एडवोकेटेड द सोशल इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मतलब कि इकोनॉमिक के पार्ट क्या होंगे, हमारा जो इकोनॉमिक के पार्ट हमारे जो वर्कर होंगे वो सोशल ग्रुप पे भी क्या करेंगे, मोटिवेटेड होंगे। सो 8 पॉइंट, हिज मेन कंसर्न वाज टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग। देखिए इनका प्रिंसिपल था, फाइंडिंग थे कि किसी भी काम करने के लिए एक बेस्ट तरीका आप निकाले थे, ये हमारा टेलर जी का था। वहीं मायो जी का क्या था, हिज मेन कंसर्न वाज द वर्कर सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। इनका मेन कंसर्न था कि वर्कर का सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, उनका मोरल कैसे हाई होगा, ये टेक्निक था इनका। एंड 10th, ओ नहीं सॉरी 9th, टेलर viewed workers group as being totally hostile to management, where Mayo did not view workers group being hostile to management। देखिए जो टेलर का व्यू था, बेसिकली बताया गया कि जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली हॉस्टाइल व्यू रखते हैं मैनेजमेंट को लेके। वहीं टेलर ने क्या बताया, मायो जी ने क्या बताया, नहीं ऐसा नहीं, हॉस्टाइल व्यू नहीं रखते मैनेजमेंट को लेके वर्कर। एंड 10th, ही स्ट्रेट ऑन टेक्निकल स्किल। देखिए टेलर ने टेक्निकल स्किल पे क्या किया, फोकस किया। वहीं हमारे मायो जी ने क्या किया, सोशल स्किल पे भी फोकस किया है। लास्ट, टेलर सब्सक्राइब टू रेबल हाइपोथेसिस। अब रेबल हाइपोथेसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो रेबल हाइपोथेसिस में बेसिकली बताया कि जो वर्कर होंगे वो क्या होंगे, मोब होंगे, रेबल होंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट पे एक्चुएट होंगे और काम करेंगे। और सेल्फ इंटरेस्ट कैसे होंगे, बेसिकली फाइनेंशियल रिवार्ड्स वगैरह पे। इस चीज को पे बेसिकली हमारे टेलर जी क्या हुए थे, एग्री हुए थे, सब्सक्राइब किए थे। और वहीं मायो जी ने क्या किया था, रेबल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था एंड सब्सक्राइब टू हर्ड हाइपोथेसिस। हर्ड हाइपोथेसिस क्या है, हर्ड हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, एक सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे जो कि वर्कर क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और एफिशिएंसी देंगे। So one more point. So however, despite the above differences, Taylor and Mayo had the following similarities. Let's see what are these similarities. First, both attempt to discover the cause of low productivity in the industry। देखिए दोनों लोग का क्या था, मेन फोकस था इंडस्ट्री के जो लो प्रोडक्टिविटी है उसके कॉज को पता करना, उसके लिए सजेशन देना। ये दोनों लोग का क्या था, फोकस था, मतलब कि ओपिनियन था। एंड सेकेंड इज बोथ बिलीव दैट हार्मोनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट वुड एलिमिनेट द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। यस। थर्ड पॉइंट इज बोथ हेल्ड दैट द मिस्टेक व्यू ऑफ both held that mistaken view of workers and employers was responsible for the output restrictions, low productivity of the workers। देखिए जो मिस्टेकन व्यू वगैरह लिया गया था वर्कर और मैनेजमेंट के लिए, उसी को क्या हुआ था, आउटपुट हमारा रेस्ट्रिक्ट हो गया था। और ये व्यू किसका था, दोनों लोग का व्यू था। फोर्थ पॉइंट, बोथ एम्फेसाइज दैट द अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट शुड बी साइंटिफिक। देखिए हमारा टेलर का तो था ही साइंटिफिक अप्रोच, और मायो जी का भी यही, इस चीज पे साइंटिफिक अप्रोच पे भी मायो जी ने भी एम्फेसाइज किया था, अपार्ट फ्रॉम सोशल अप्रोच। बोथ रिगार्डेड एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी एज द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोनों लोग का क्या मोटो था कि कहीं से कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। वहीं पे हमारे टेलर जी ने क्या किया था, साइंटिफिक व्यू दिए थे, और हमारे मायो जी ने क्या दिया था, सोशल व्यू दिया था। एंड बोथ अपोज द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एज द obstructed the efficient functioning of organizations, and both were motivated to improve the industrial productivity। देखिए इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो होता था मैनेजर और मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच, उसको क्या किया था इन्होंने, अपोज किया था। उसको कम करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। एंड बोथ वर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। और क्या थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को मोटिवेट करने के लिए लोगों ने ध्यान दिया था। नाउ सी द क्रिटिकल इवोल्यूशन। क्रिटिकल इवोल्यूशन अब क्या क्या है उसके मायो के एक्सपेरिमेंट का।
देखिए क्रिटिकल इवोल्यूशन में क्या बताया गया कि देखिए जो मायो का जो एक्सपेरिमेंट रहा, जो मायो के थ्योरी रहे, फिलॉसफी है, वो हमारे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है, इम्पोर्टेंट रहा है, और उसके द्वारा जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है, सोशल ग्रुप क्रिएट हुआ है, वो अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसी के फैक्ट में इन फैक्ट मायो इज डिस्क्राइब्ड बाय डीएस पू। देखिए डीएस पू के द्वारा एज ए बिहेवियरल साइंटिस्ट लॉन्ग बिफोर द टर्म बिकेम पॉपुलर। जो देखिए बिहेवियरलिस्ट साइंटिस्ट का जो टर्म यूज करने से पहले डीएस जी ने इनको क्या किया था, बिहेवियरलिस्ट साइंटिस्ट बताया था। किसको? मायो जी को। सो पॉइंट रिमेंबर कीजिएगा कि बिहेवियरलिस्ट साइंटिस्ट किसने बोला था? डीएस ने। And apart from their significant, Mayo's theory criticized on the following grounds. So let's see what are these ground. देखिए अपार्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट, इतने सारे कंट्रीब्यूशन के द्वारा भी कुछ कमियां रह गई थी इनके एक्सपेरिमेंट में। उस कमियां को जो फर्दर रिसर्चर ने क्या किया, एनालाइज किया और क्रिटिसाइज किया। देखते हैं वो क्या क्या थी। जो फर्स्ट पॉइंट थी हमारा, एलेक्स केरे criticized the Hawthorne experiment for their lack of scientific base as well as for selecting an unreliable small people of 5 to 6 girls to generalize। देखिए एलेक्स जी का जो मेन कहना था कि जो हमारा मायो जी का जो प्रिंसिपल था वो बेसिकली अनसाइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट। देखिए आपको ध्यान होगा कि उनका जो पहला इल्यूमिनेशन मेथड था उसमें क्या किए थे एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने 5 से 6 लड़कियों का ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किए और उसको क्या किए, जनरलाइज कर दिए। बेसिकली ऐसा उन्होंने बोला कि, तो अलेक्स जी ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक नहीं है कि आप 5 और 6 लड़कियों का ग्रुप ले रहे हो, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसको आप जनरलाइज कर दे रहे हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। बेसिकली उन्होंने देखिए जो गर्ल्स लिए गए इस पे उन्होंने क्या किया था, पॉइंट आउट किया था कि गर्ल्स पे एक्सपेरिमेंट करके और जो प्रिंसिपल है जनरलाइज कर दो सबके लिए, मतलब मेन के लिए, ओल्ड के लिए, सब पे नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग एफिशिएंसी होती है। लड़कियों का अलग होगा, लड़कों का अलग होगा। बेसिकली सब पे उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट को लेकर क्रिटिसाइज किया। एंड सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि देखिए जो सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था हाथोन में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो वर्कर थे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई ड्यू टू कि उनको आप स्टडी कर रहे हो, उनका क्या था, उन पे फोकस कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रुप का क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा क्योंकि उनको लगेगा कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई हमारे पे स्टडी कर रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और इस चीज को लेकर आप थ्योरी को अपने जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अगर इस बेस पे जनरलाइज कर रहे हो करोगे तो कहीं अलग ऑर्गेनाइजेशन पे आप तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हो, वहां पे आप स्टडी कर नहीं रहे हो, तो उनके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा इन्होंने बताया, किटिक ने अपने इवोल्यूशन में क्या क्या समराइज किया है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉरेंस बर्टिज क्रिटिसाइज ह्यूमन रिलेशन एज अ प्रो मैनेजमेंट एंड एंटी यूनियन। देखिए प्रो मैनेजमेंट एंटी यूनियन बताया। द यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स डिस्क्राइब देम एज अ काउ सोशियोलॉजिस्ट। देखिए इनके जो थ्योरी को काउ सोशियोलॉजिस्ट बोला था किसने, द यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स। ये पॉइंट रिमेंबर कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि काउ सोशियोलॉजिस्ट बोला गया किसके, मायो के थ्योरीज को काउ सोशियोलॉजिस्ट। बेसिकली क्यों? क्योंकि ये प्रो मैनेजमेंट एंड एंटी यूनियन के अगेंस्ट में था। इसमें क्या था कि मैनेजर अपने अकॉर्डिंग सारा जो है फिलॉसफी एफिशिएंसी को लेकर सब चीजें क्या होगा, बना लेगा, तो इससे जो यूनियन लीडर होंगे उनका कोई जरूरत नहीं होगा। तो एंटी यूनियन बोला गया। इसलिए इसी को लेके जो यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के जो ग्रुप थे इनके थ्योरी को क्या बोला, काउ सोशियोलॉजिस्ट बोला। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमिताई इरजवानी ने क्या रिमार्क किया था कि जो हमारा ह्यूमन रिलेशन पीपुल है वो बहुत ज्यादा मतलब कि फोकस कर रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे रेदर देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। एंड सेवन पीटर ड्रकर सेड दैट ह्यूमन रिलेशन निग्लेक्ट द नेचर ऑफ वर्क एंड इंस्टीड फोकस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन। ही क्रिटिसाइज देम फॉर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशंस। मतलब कि उन्होंने बताया कि जो हमारा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जो फोकस रहा है वो ह्यूमन एक्सपेक्ट रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को क्या किया, इसने निगलेक्ट कर दिया। एंड वन मोर पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए मायोइज्म क्या होता है। मायोइज्म मतलब जो मायो के प्रिंसिपल थे उनके फिलॉसफी, तो बेसिकली उसको क्रिटिक ने मायोइज्म बोला गया। तो क्या बोला, क्रिटिक से दैट द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को मायोइज्म बोलते हैं, कुड नॉट एक्सप्लोर द मल्टी डायमेंशन फिनोमिना ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन कंप्लीटली। सो देखिए सारे बहुत सारे क्रिटिक ने अपने अपने अकॉर्डिंग मायो के जो फिलोसफी थे, थ्योरी को थे, ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी को क्या किया, क्रिटिसाइज किया है। तो आई हैव कवर्ड मैक्स पॉइंट इन आवर लेक्चर। सो आई होप टुडे लेक्चर
is useful for you and for your UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर जून 26। सो आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और एक बार, दो बार, तीन बार देखिए जब तक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ना आए। और अगर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू फॉर नाउ।